پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں تحریک طالبان افغانستان کو پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹی ٹی اے دہشت گرد یحییٰ نے ساتھیوں کو حملے سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ 6 راکٹ چلانے والے، 6 معاونین، 2 لیزر والے، ان کے 2 معاون جبکہ 1 سنائپر ہوگا۔ ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضامندی ظاہر کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹی ٹی اے پاک افغان سرحد سے سیکورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہے۔ پاکستان کئی بار بتا چکا ہے کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، لیکن افغان حکومت روک تھام میں ناکام رہی۔ شاہین آفریدی کپتان رہیں گے یا نیا کپتان بنایا جائے گا؟ فیصلہ کیمپ کے بعد ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، 7 رکنی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ محمد یوسف، عبدالرزاق، وہاب ریاض، اشرف شفیق اور قومی ٹیم کا کپتان سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ کہا تمام ارکان کے اختیارات یکساں ہوں گے، کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، تمام فیصلے اب سلیکشن کمیٹی ہی کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کوچز کے لیے کام جاری ہے، نام فائنل ہو جائے گا تو آگاہ کر دیں گے۔ اماد وسیم سے کسی قسم کے این او سی پر نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوئی۔ حارث رؤف کا کانٹریکٹ بحال کر دیا، اب یہ نہیں چلے گا کہ کسی کا فون آ جائے کہ اس کو کھلا دو۔ ٹیم میں پیراشوٹس کی گنجائش کم سے کم ہوگی، لانگ ٹرم میں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو 90s کی ٹیم واپس آئے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن بولر کی واپسی، محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیابی ظاہر کر دی، کہا پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب رکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، پی سی بی سے مثبت بات چیت ہوئی، کہا میں پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں۔ عامر نے مزید لکھا، میرا ملک میری ذات سے پہلے آتا ہے، گرین جرسی پہننا ہمیشہ سب سے بڑی خواہش رہی ہے۔ فاسٹ بولر نے 2020 میں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ عامر اب تک 147 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ شائقین کرکٹ بھی عامر کے فیصلے پر خوش۔ اس کو ظالموں نے مار کے گئے دکان پہ، مجھے قاتل چاہیے، مجھے قاتل چاہیے میرے بچے کے، ہم دفنائیں گے نہیں جب تک کہ ہمیں قاتل۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنل بے لگام ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ نارتھ کراچی بلال کالونی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو فارم کی دکان میں گھسے، 80,000 روپے لوٹ لیے۔ مزاحمت پر 25 سالہ دکاندار عبدالرحمان کو گولیاں مار دی۔ پولیس حکام نے کہا شواہد جمع کر لیے، ملزم جلد پکڑ لیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات جاری۔ مقتول کے رشتہ دار عباسی شہید اسپتال میں انصاف کی دعائیاں دیتے رہے۔ عبدالرحمان کے بھائی نے کہا جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے تدفین نہیں کریں گے۔ میمن کو دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام نبی میمن پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں، وہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ غلام نبی میمن کو پہلی مرتبہ جون 2022 میں آئی جی سندھ تعینات کیا گیا تھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے دھاتی ڈور بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونے والے بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا، بچے کی جان جانے سے والدین کی دنیا تباہ ہو گئی۔ پتنگ بازی کے سدے باب کے لیے قانون موجود ہے، پھر بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ کیس رجسٹر کرنا کافی نہیں، ملزم کو سزا ہونی چاہیے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں کہا قانون پر عمل درآمد کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے، زیادتی کے واقعات میں کمی آنی چاہیے، خصوصی اقدامات کیے جائیں، ریپ کے کیس میں ملزم کو سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ نالن چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، شکریہ ادا کرنے سب پورا پنڈ ویدا پہ تسی مگر آ کے کیا گڈی روکو کیا کراؤ منگو گے میں لاہور میں گاڑی روکنے پر نون لیگی ایم پی اے ملک وحید کی پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملک وحید نے اہلکاروں سے کہا معافی نہ مانگی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کالے شیشے والی گاڑی استعمال کرنے والے ایم پی اے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی گئی۔ اپنی ڈیوٹی دینے والے ٹی ایس آئی کا باغبان پورہ سے پولیس لائنز تبادلہ کر دیا گیا۔
सोइन आजम ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। सोइन आजम ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। रेकोटेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेकोटेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मंसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रियल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिनकासिब पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रेकोटेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहिदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कराची, लाहौर, पिशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा, दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करते। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनेगी। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा PTI पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से बात करूंगा, अवाम को हक दिलवाऊंगा। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले, मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी की आदत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है। इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं कुछ मिला। समझ नहीं आता पार्टी की आदत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों ढसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए। PTI हुकूमत ना हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में शरीक थीं। वजीर इत्तलात और नशरियात अजमा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाब शाह के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी से वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के मजीद 4 ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मसमार कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज हिलाली इम्तियाज से नवाजा। पाक फौज के 41 अफसरों को उनकी खिदमात के एतराफ में हिलाली इम्तियाज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। रेयर एडमिरल हबीबुर रहमान, मेजर जनरल शाजिया निसार को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली के लिए सितारे बसालत का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाजात का ऐलान किया था। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद, अहले खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हुर्फों से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर ताजियत के लिए आए। इस्लामाबाद में गजा बचाओ तहरीक का मुजाहरा, डी चौक जाने की कोशिश में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कर रहे थे। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए सड़क पर ही इफ्तार की। मुश्ताक अहमद ने कहा हमारी तहरीक का एक निकाती एजेंडा सिर्फ गजा को बचाना है। We have not the power to stop it. And I appeal to those that have the power to stop it to do it effectively. रफा में जमीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया, कहा अब वक्त आ गया है फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का इख्तियार नहीं है। जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा जंग रोकी जाए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, खान यूनिस में जमीनी और फिजाई बमबारी, रफा और देरुल बलाह में 14 फलस्तीनी शहीद और नसीर अस्पताल पर हमला, 24 घंटे में 72 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फिर हमला, 17 फलस्तीनी शहीद। हमास से झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान कराची में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह पर अदा कर दी गई। नसरीन जलील, डिप्टी मेयर सलमान मुराद, वसीम बारी समेत दीगर की शिरकत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आए। शहरयार खान को भोपाल हाउस में उनकी वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीका के शमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े, मौसम ठंडा हो गया। हिस्पानवी रेसर ने पुर्तगाल मोटोजीपी में बाजी मार ली। म्यूरिक विनालीज ने करियर की पहली स्प्रिंट रेस अपने नाम की। मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के ब्रेडवांडर की बाइक को हादसा पेश आया। विमेन्स सुपर लीग फुटबॉल में रिवायती हरीफों का टाकरा, मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दे दी। जेस पार्क ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर सिटी की पहली पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रिया के फुटबॉलर ने तेज तरीन गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के दरमियान दोस्ताना मैच में क्रिस्टोफ ने सिर्फ 6 सेकंड में गोल दागा। फ्रांस और जर्मनी के मैच में भी जर्मन फुटबॉलर फ्लोरियान ने 7 सेकंड में गोल स्कोर किया।
اور قومی کرکٹرز کا نعت پڑھتے ہوئے مدینے کا سفر، پاکستانی کرکٹر مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے نعت پڑھتے رہے۔ بابر اعظم، امام الحق، نسیم شاہ اور افتخار احمد رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔